हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग हेल्थी और सेफ होंगे। यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल ये उठता है कि ये जो सॉइल है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सो पॉइंट इज टू बी नोटेड, if we consider any structure in civil engineering, for example, dam, earthen dam, gravity dam, road, Burj Khalifa, your house, my house, this building, any building. So these structures are rested over what? These structures are rested over soil. It means soil is the base of entire civil engineering. And because soil is the base of entire civil engineering, that's why we are discussing this soil mechanics. So because the soil is the base of civil engineering, that's why soil is like very, very, very important. So that importance we can see by the questions which has been asked in the several examinations. Now, second thing कि soil is very simple because soil is connected with us in any form. बचपन से हम soil में खेलते आए हैं, कूदते आए हैं, तो इस वजह से हम soil से क्या है, connected है. और soil से connected है तो उसको feel करना बहुत simple. और बिकॉज उसको फील करना बहुत सिंपल है, इसी वजह से सॉइल एक तरह से क्या है, काफी सिंपल है, बहुत आसानी से आप उसको समझ सकते हैं. और ये चीज अभी बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे सॉइल मैकेनिक्स आगे बढ़ेगा आप देख सकते हैं. रही बात इंपॉर्टेंस की, तो सॉइल मैकेनिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट इन एनी एग्जामिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसिडर दैट IES, ESE. Now you know very well कि in IES there is what? Pre and mains. Now point is to be noted when we consider this pre-examination. So point is to be noted there will be total 150 questions. And out of 150 questions in which that both like part 1 and part 2 both are included, technical is like total 150 questions. So out of these like 12 subjects, 12 technical subjects are there. Soil mechanics is the one technical subject, and from this one technical soil mechanics and foundation engineering, total 16 to 21 questions were there out of 150 in like previous 3 to 4 years. Now point is to be noted key in the like 16 to 21. Similarly, when we consider the mains, so in the mains total marks is what? 300. Out of 300 marks, when we talk about this soil mechanics and foundation engineering, so approximately 100 marks were there from the soil mechanics and foundation engineering. One third, almost one third. Now point is to be noted when we consider the GATE examination. So you know, GATE is total 100 marks. And out of this 100 marks, when we talk about the soil mechanics, so this is most important subject, either technical or non-technical, like maths, aptitude, and like maths and aptitude will be like 20-25 marks, maths plus aptitude. And next one is what? Soil. When we talk about the soil, so 15 to 18 marks out of 100 will be there from the soil mechanics. 15 to 18, you can see 15 to 18%. What is the cutoff marks beta of GATE? Qualifying marks. You know qualifying marks is like just 25 to 28. And 25 to 28 marks, 15 to 18 marks is like only soil mechanics. So without soil you can, like if you are completing mass aptitude and soil only, then only you can qualify the GATE examination. And in the ESE without soil mechanics you cannot crack that ESE examination. You can see that weightage is like heavy weightage is there. Okay, so this is the importance of this particular soil mechanics and foundation engineering. So we cannot neglect, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. आपको अगर किसी भी एग्जाम में एक तरह से अच्छे मार्क्स लाने हैं, रैंक लानी है, लिस्ट में नाम लाना है, तो ये चीज जरूरी है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. फिर अगर हम बात करते हैं किसी भी AN असिस्टेंट इंजीनियर वाली पोस्ट या JEN की या SSC की, तो आप वहां पर भी देखेंगे कि 20% अप्रोक्सीमेटली जो रहता है वो क्या रहेगा? सॉइल रहेगा. ठीक है, अगर सब कुछ मिला के अगर हम देखें तो 20% सॉइल रहेगा. तो 20% एक तरह से काफी अच्छा खासा वेटेज है. ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा. सो दिस इज द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल मैकेनिक्स. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट द बुक्स, सो बुक्स में जब हम बात करते हैं तो जो भी कॉलेज में आपने बुक रेफर की है,
that same book you can refer here also. As such books are not required. जो हम सब आपको notes दे रहे हैं, that is the more than sufficient. 97-95% क्वेश्चंस जो होंगे 95 to 97 वो यहीं से आने वाले हैं, ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पर जो नोट्स हैं वही मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन नोट्स के लिए आपको क्लास अच्छे से लगानी पड़ेगी, क्लास अच्छे से समझना पड़ेगा. तो अगर आपने क्लास अच्छे से लगाई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, रूल्स क्लियर है, और अगर आप देखें तो इससे बाहर कुछ नहीं जाता है. तो एज सच बुक्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बट कभी कभी होता क्या है कि सपोज फैकल्टी इज नॉट अवेलेबल and suppose some doubt is there, so that doubt you can clear from that book, that particular doubt only. Okay, so that doubt only you can crack from that particular books. So book की जब हम बात करते हैं, जो भी कॉलेज में आपने रेफर किया, that same book you can refer. Otherwise Gopal Ranjan and Rao is a good book, you can buy it. KR Arora is also a good book. BC Punamiya, many questions are there, and this is like detailed version of this soil mechanics, to BC Punamiya. So out of this like Gopal Ranjan and Rao is a good book, you can refer this. Okay, now next when we talk about the syllabus, so syllabus is as such lengthy we can say, and total like 12 to 13 chapters are there. Now point is to be noted, each and every chapter have some significance, and that significance is important. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस लेक्चर ऑल्सो मैंने पूछा आपसे क्यों पढ़ रहे हैं सॉइल. इसी तरह से आप ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे उसमें, उस चीज को आपको ध्यान रखना है क्या है और क्यों है. सो यहाँ पर जब हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स आर देयर, और इस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में जब हम देखते हैं तो दिस विल डिस्कस इन 2 पार्ट्स. ठीक है, एक तो यहाँ पर फेज डायग्राम रिलेटेड प्रॉपर्टीज आती हैं, और दूसरी जो है वो आपका phase diagram related properties, and second one in index properties. So इस तरह से this chapter we can break into 2 parts. Okay, now point is to be noted, in this properties of soil we will discuss like phase diagram related like void ratio, water content, porosity, air content, percentage air voids, okay, the specific gravity, all these properties we will discuss. In the index properties we will discuss water content, activity, sensitivity, thixotropy, consistency, liquid limit, plastic limit, Sinkel limit, all these things we will discuss in this index properties. Okay, so this chapter number 1 is like a lengthy chapter which will take like around 15 to 20 hours. Okay, when we consider the soil, so in the soil there are different type of soil, so we have to do nomenclature, we have to do classification of that soil. So here we will do the classification of soil in chapter number 2, and in the classification of soil here we will classify like well graded, poorly graded, ठीक है, silty clay, silty sand, silty gravel, etc. So here we will give the name of a soil mixture. जब भी हम कोई भी एक तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें निकालना होता है अप्लाइड लोड. So we have to determine the applied load in the structure, and that applied load, applied stresses calculation is like very important, because आपको अच्छे से पता है if applied stresses is more than the strength, then what will happen? Failure will happen. So similarly here when we talk about the soil, so in the soil also there are some stresses, and these stresses we will discuss in 2 chapters. First chapter number 3 effective stress, and fifth chapter number 5 stress distribution. Point is to be noted कि here in chapter number 3 we will discuss the stresses developed in the soil mass due to the self weight and uniform surcharge. And in the chapter number 5 we will discuss the stresses developed due to that different loadings. Like for example, अगर हम इस building के आस-पास बात करें तो सामने there is a complex. So due to that complex also there will be some stresses. That nearby metro station is there. Due to that metro station also there will be some stresses developed in the soil mass. So that we will discuss in chapter number 5, and developed due to self weight and uniform surcharge we will discuss in chapter number 3. Point is to be noted, when we talk about the soil, so with the help of soil we can construct many things. For example, when we talk about the hydraulic structure, so there is a what? Dam. Dam of concrete is what? Gravity dam, and dam of soil is what? Earthen dam. So here when we talk about the earthen dam, so that soil have a property by virtue of which that water will flow through the soil mass, and that is what? Permeability. When this water will flow through the soil mass, so this is what? Seepage. So actually here
in chapter number 4, we will discuss properties, problems related with the earthen dam. Okay, so here we can say that in the chapter number 4, sorry, we will discuss permeability, that is the property of soil, and when this flow will takes place, so in the flowing condition there will be some problems, so we will do seepage analysis. Okay, so by this way, this is the chapter number 4. It is also very important. It will take like 15 to 20 hours. Now, point is to be noted that when we constructing the road, so during the construction of road, we have to do compaction. And this compaction is very important because by the compaction, that soil becomes what? Densified. Once that soil achieve the densest condition, then all the engineering properties will improve. Now that soil will behave durable, stable. So now in this case, chapter number 6, we will discuss the compaction of soil, in which we will use rollers, rammers, vibrators, etc. So compaction. Now chapter number 7, we will discuss the very important chapter, chapter number 7. For example, if we consider this building, so in this building there are some columns. Below the columns there is a footing, below the footing there is a soil. And now suppose, for example, if we are constructing this building, so due to this construction, what will happen? That soil will settle. If this settlement is more, then what will happen? There may be some cracks developed in our building. और अगर cracks develop हुआ तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या है? Problem ही problem है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक practical problem हमें face करनी होती है soil में. Because soil के अंदर voids होते हैं तो वो क्या करेगी? Settle करेगी, उसका volume decrease करेगा. और जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वहां पर उस वॉल्यूम डिक्रीज, उस सेटलमेंट को हमें निकालना पड़ेगा. और वो एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. और अदरवाइज सेटलमेंट अगर ज्यादा हुआ तो आपको पता है क्या होगा, बिल्डिंग में क्रैक आएंगे, आपकी बिल्डिंग कोलैप्स भी कर सकती है. इसलिए ये एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. तो दैट इज व्हाट? कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन. चैप्टर नंबर 7, consolidation. Now, a point is to be noted next, when we talk about any structure, either you or me or like this chairs or like this podium or like this RCC slab, all these things, every material like this steel column, all these things have what? Strength. And if applied load is more than strength, then what will happen? Failure. Similarly, that soil also has some strength. And if applied load is more than, applied stress is more than the strength, then there will be what? Failure. So here in chapter number 8, we will discuss the shear strength of soil. Okay. So this chapter number 8, shear strength of soil, that is also very important. Now point is to be noted that when we construct the retaining wall, sheet pile wall, so to retain the structure, for example, this basement wall, this is the basement, I am sitting in the basement. And in this basement, this is what? This is basement wall. And behind this basement wall, what is there? Soil is there. Soil will apply some pressure on this retaining structure, on this retaining wall, and that pressure calculation is also very important. अगर ये pressure, earth pressure, soil के द्वारा जो ये pressure लग रहा है, अगर ज़्यादा हुआ तो then there will be a problem. So that pressure is also like very important, and that pressure we will determine in chapter number 9. That is what? Earth pressure. Next. Point is to be noted कि when we do the different constructions, so sometime what will happen कि suppose you are constructing a road or like rail or like this, so क्या होगा कि कई बार जैसे रोड का लेवल ये है, साइड में जो नॉर्मल ग्राउंड का नेचुरल ग्राउंड लेवल जो है वो ये है, ये रोड का लेवल है, ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है. तो अब क्या करें? तो इन दोनों को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको एक स्लोप से ज्वाइन कर देते हैं. सो यहाँ पर उसको अगर हम स्लोप से ज्वाइन कर रहे हैं तो वो स्लोप की स्टेबिलिटी, स्लोप शुड बी स्टेबल एंड दैट स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप वी हैव टू डिटरमाइन. ठीक है, उसका एफओएस हम निकालेंगे. अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम. ओके, तो दिस इज बेसिकली सॉइल. नाउ नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द फाउंडेशन, सो फाउंडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग सुपर स्ट्रक्चर की, तो सुपर स्ट्रक्चर का सारा लोड हम सॉइल को ट्रांसफर करते हैं. बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि ट्रांसफर करते हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रांसफर करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? तो यहां पर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि दैट लोड विल बी ट्रांसफर थ्रू दी व्हाट? वेरी गुड, फाउंडेशन.
सो यहाँ पर फाउंडेशन के थ्रू हम सुपर स्ट्रक्चर, जो ये 4-5 मंजिल की जो बिल्डिंग है, उसका लोड हम सॉइल को ट्रांसफर कर रहे हैं। और ट्रांसफर जब कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, अगर फाउंडेशन सॉलिड होगी, स्ट्रांग होगी, स्टेबल होगी, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल है। और अगर फाउंडेशन वीक है तो सब कुछ वीक है। सो यहाँ पर फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं तो फाउंडेशन को बेसिकली दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। एक तो होती है फाउंडेशन जो कि शैलो होगी, और एक होता है जो कि क्या होगी, डीप होगी। डीप फाउंडेशन में जब हम देखते हैं तो दैट विल बी लाइक पाइल फाउंडेशन। तो वहां पर क्या आती है बेटा, पाइल फाउंडेशन आएगी। तो इस तरह से शैलो फाउंडेशन एंड पाइल फाउंडेशन, तो ये जो है ये एक तरह से क्या है, फाउंडेशन का पार्ट है। और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आर देयर, लाइक यहाँ पर जब हम देखते हैं तो दैट स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉइल, दैट मिसलेनियस टॉपिक्स आर देयर। तो ये एक्सप्लोरेशन एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से क्या रहेगा, सॉइल रहेगा। ये जो पूरा जो सब्जेक्ट है हम अप्रोक्सीमेटली 90 आवर्स में एक तरह से कंप्लीट करेंगे। 90 आवर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ चैप्टर्स जो है वो एक तरह से इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जैसे कि चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल नियर अबाउट 20 आवर्स का है। तो ये एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर एज सच प्री, मेंस प्लस इंटरव्यू, ठीक है। सब में एक तरह से क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो एक तरह से ऑब्जेक्टिव, जो प्री मेंस वाला जो चीज है उसके लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कन्वेंशनल। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर देयर, और वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर जब हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो ये एक तरह से ये भी इंपॉर्टेंट ही है होने को, लेकिन ये कुछ चैप्टर कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे परमिटिव एंड सीपेज एनालिसिस है, तो दिस वी विल डिस्कस इन लाइक अराउंड 18 आवर्स। और 18 आवर्स में जब हम डिस्कस करेंगे तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कन्वेंशनल एज वेल एज इंटरव्यू। सब में एक तरह से क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन छोटा चैप्टर है, 3 से 4 घंटे का है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। कॉम्पैक्शन इज ऑल्सो लाइक 3 to 4 आवर्स, और इसमें जब हम देखते हैं तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक तरह से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। compressibility and consolidation, that is like very important, and this thing is important for like objective, conventional as well as interview, okay. Shear strength is also important for objective, conventional as well as interview, okay. Next जब हम देखते हैं तो that is earth pressure is important for objective and conventional। कन्वेंशनल इसका ज्यादा पार्ट रहता है अर्थ प्रेशर का, ठीक है। तो कन्वेंशनल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव ओनली। फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं तो शैलो फाउंडेशन एंड पाइल फाउंडेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो हम ये जो हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पूरे सॉइल का अराउंड 25 to 30%, 25 से 30%, पूरे सॉइल का 25 से 30% क्या है, फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है। और फाउंडेशन जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल प्लस इंटरव्यू के लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सप्लोरेशन एंड स्टेबलाइजेशन एक तरह से ऑब्जेक्टिव टॉपिक है, जिसको कि हम थोड़े से लाइक नोट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, सिलेबस है, कौन सा चैप्टर क्या है, क्यों है, वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि आप जो पढ़ रहे हो, सॉइल क्यों पढ़ रहे हैं वो तो समझ में आ गया है, लेकिन आप क्यों बैठे हो इस मोबाइल के सामने, इस लैपटॉप के सामने, आप क्यों बैठे हो, आप क्या करने आए हो, है? बोले सर मोबाइल में बढ़िया अच्छी अच्छी वीडियो दिखती है तो सोचा टाइम पास के लिए ये भी देख लें। तो अगर आपका मोटिव ऐसा है, टाइम पास करना है, बोले सर अभी कुछ चल तो रहा नहीं है, बोले सर मोबाइल में ही कुछ एक तरह से ऑनलाइन चला लें। ऑनलाइन का सर आजकल थोड़ा क्रेज है, ऑनलाइन, हाँ, शॉपिंग, ऑनलाइन क्लासेस, नया नया आया सर, इसलिए बैठे हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो चीज है, ये जो आपका इस तरह का अगर एटीट्यूड है तो फिर वेस्ट मत करो टाइम को। टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं है, आराम से सो, मस्त एकदम बिंदास, बढ़िया मौसम हो रखा है, बढ़िया सोइए, कुछ नहीं लेना देना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि मैं यहां पर खड़ा हूं ये पढ़ाने के लिए, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं अपना 100% दूं और आपको ये पूरा सॉइल मैकेनिक्स जो है वो अच्छे से समझ में आया। दिस इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन ही उठता है कि मोबाइल के दूसरी तरफ जो आप बैठे हो वो क्यों बैठे हो, वो किस लिए?
तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है। ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरह से सॉइल इंपॉर्टेंट है उसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों बैठे हो, आपका एम क्या है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। तो इस चीज को आपको क्लियर रखना चाहिए। चलिए बताइए क्या लक्ष्य है। बोले सर बोर हो रहे थे तो टाइम पास करने के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं है। आप वहां पर बैठे हैं टू क्रैक द आईएएस एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, एसएससी। और सर हम यहां पर बैठे हैं किस लिए? ऑफिसर बनने के लिए, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। ये जो चीज है अगर आप में नहीं है, अगर आप इसके लिए नहीं बैठे हो, अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए बैठे हो तो जाओ, कोई फायदा नहीं है। फालतू क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मत करो टाइम वेस्ट। क्यों फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हो? आराम से ऐश करो बेटा, कुछ नहीं रखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप वहां पर एक तरह से आपका अगर एम, लक्ष्य ये है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, तब तो आप सही जगह हो। और अदरवाइज आप जाओ वहां पर गलत बैठो। आप जाओ एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करिए, कुछ नहीं रखा है। क्लियर? दूसरी चीज, सॉइल इज लाइक इंपॉर्टेंट एज वेल एज सिंपल। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां पर हम टेस्ट भी लेंगे और आपका क्लास में ही, आप टेंशन मत लो, आप अपने घर पे बैठे होंगे लेकिन फिर भी हम टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो आपका एक तरह से टेस्ट होगा तो उस टेस्ट में आपको एक तरह से कंप्लीट होना चाहिए। और जब सॉइल कंप्लीट हो, अगर किसी इंटरव्यू में आप अपीयर हो रहे हो और इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए विच इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो मेरी कोशिश ये है कि आप ये बोले कि सॉइल है। सॉइल इज माय फेवरेट टॉपिक, फेवरेट सब्जेक्ट in interview, in any interview. So if like आपका इस तरह से जो एम है वो लक्ष्य एक तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। मेरा एम ये है कि अगर आप इंटरव्यू में जाएं तो आप सबसे बेस्ट टॉपिक जो है वो क्या बोले? सॉइल बोले। अब यहां पर ये चीज कैसे अचीव होगी कि सर एम तो हमने बना लिया लेकिन वो हम अचीव कैसे कर पाएंगे? तो उस चीज को आप ध्यान रखिए। उसको अचीव करने के लिए दो चीज मस्ट है। टू थिंग्स आर लाइक मस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट? रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जब आप एक तरह से क्लास में आ रहे हो, मोबाइल के सामने आपने लेक्चर लोड किया है, तो उससे पहले पिछला सारा रिवाइज होना चाहिए। आप ये ध्यान दीजिएगा कि रिवीजन जब तक 4 से 5 बार नहीं होगा, हर कोई सब्जेक्ट, तब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो 4 से 5 बार, मिनिमम 4 से 5 बार रिवीजन एक तरह से इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है। नेक्स्ट, रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस इज लाइक ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। और प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं तो क्या प्रैक्टिस करनी है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका काम यह है, चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं, वर्कबुक कंप्लीट हुआ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कबुक कंप्लीट करिए, देन ईएससी प्रीवियस ईयर, देन गेट प्रीवियस ईयर। ये तीन चीज कंप्लीट होने के बाद देयर इज थ्योरी बुक, देयर इज लाइक टेक्स्ट बुक, दैट इज द फोर्थ एंड फिफ्थ प्रायोरिटी। अदरवाइज 3 प्रायोरिटीज आर देयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको करना ही करना है। क्या करना है? वर्कबुक, ईएससी प्रीवियस, गेट प्रीवियस। ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही आप ईएससी और गेट के क्वेश्चन भी लगाते चलिए, ये ध्यान रखिए। और अगर आप सोचते हैं कि नवंबर दिसंबर में लगाएंगे, या सर इस बार तो प्री भी लेट हो रहा है, हाँ इस बार तो प्री लेट होगा सर, बहुत टाइम है, तो बेटा लास्ट में तो है ना, जो जहर खाने को टाइम नहीं मिलता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप जो है प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, अभी करेंगे, जब आपका कंप्लीट होगा तभी आपको करना है। और अगर आप ये चीज प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप अगर इस तरह से अच्छे से समझ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और ईएससी, गेट और वर्कबुक, ये तीन चीज अच्छे से लगा रहे हैं, सिलेक्शन पक्का है, सक्सेस दूर नहीं है। और ये चीज आप ध्यान रखिए। क्लियर? तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। तो ये एक तरह से इसका इंट्रोडक्शन था सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग का। आप अच्छे से बने रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, और रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसका आप ध्यान रखिएगा। क्लियर?